को डिस्कस करते हैं। So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students who are live right now with me. Today we will talk about corporate social responsibility, that what is corporate social responsibility and how it helps to enhance the good image of the organization in the industry. आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कि ये वर्ड क्या है, क्यों जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है और वो क्यों करती हैं और इसको करने के लिए क्या क्या काम कर रहे होते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड आई विल शेयर अ स्मॉल वीडियो रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू गाइस। आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ, वो वीडियो आपको जो है वो देखनी है और इसके अहम पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करने हैं। वंस वी conclude that video, we will take feedback from all of you guys. हम आप लोगों से एक छोटा सा फीडबैक लेंगे इस हवाले से और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किस तरह किया जा सकता है और अगर पेपर में ये सवाल आता है तो हम किस तरह इसको फॉलो करते हैं। सो ओवर टू यू गाइस, ये वीडियो आप प्लीज गौर से देख लें। Corporate social responsibility. What exactly does it mean? Global warming, diminuted natural resources, the extinction of various animal and plant species, global population increase, and migration. Amongst others, these are some of the real environmental and social issues we face today. How can we address these issues whilst ensuring food, education, and health for all? How can we ensure that economic development and technological progress benefit the greatest number of people? Faced with these challenges, a more sustainable, developmental approach becomes necessary. This requires the commitment of all international organizations, governments, associations, companies, citizens. Everyone is concerned. And in practice, what can a company do? The overall goal is to combine economic progress, social justice, and environmental preservation. Based on its corporate social responsibility, a company can ensure that its economic growth is beneficial to everyone: its suppliers, employees, customers, the local population, in short, all its stakeholders, whilst minimizing its impact on the planet. Depending on the sector of activity, the specific issues and challenges differ from company to company. Let's take a pharmaceutical company. It can act responsibly in many ways. For example, offer to as many people as possible safe and quality medicines, take into account the needs of patients by supporting them throughout their healthcare. And for all companies, being responsible also means taking care of its employees and ensuring their safety at work. It also means being compliant with the application of the various laws and regulations, as well as defining ethical business practices. It also means reducing the environmental impacts of its production sites and choosing less polluting modes of transport. Thus, the ambition for a responsible company is to contribute to an economically efficient, socially equitable, and environmentally sustainable development whilst ensuring its profitability and economic growth. As such, corporate social responsibility, CSR, is now recognised as a real performance driver, particularly because it encourages innovation, reduces costs, and brings employees together around a meaningful project. Within our daily activities, both individually or collectively, we can all be part of this evolution, and that's what's really inspiring. And at Servier, CSR is a conviction, resulting in concrete actions implemented with enthusiasm. जी जनाब, तो कौन अपडेट करेगा मुझे, कौन शेयर करेगा अपने थॉट्स के क्या समझ में आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है?
It was Milton, the famous Nobel Prize winning economist. जी, anyone would like to add something regarding corporate social responsibility? ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी क्लियर आवाज आ रही है? कंफर्म कर दें मुझे। यस सर। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि जिस इंडस्ट्री को या जिस सोसाइटी को वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, उसको डिफरेंट मीनिंग में सोसाइटल कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए पे बैक करें। यानी फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है किसी जगह पर, तो बहुत अच्छी चल रही है, काफी रेवेन्यू मैं अर्न कर रहा हूं उससे, फैक्ट्री ईयर बाय ईयर मजीद ग्रो कर रही है। एज अ रिस्पॉन्सिबल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव पर्सन, मैं टैक्सेस तो पे कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे पास साथ साथ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी को भी ख्याल रखूं, यानी सोसाइटी का जो मुझ पे हक है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। इसमें हम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं और डिफरेंट तरीकाकार से सोसाइटी को पे बैक करते हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉड्यूल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना ज्यादा इंटरफेरेंस है। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो वो अभी आपके सामने शो भी हो रही है कि contributing to the advancement and development of humankind, a society through practice of क्यूरिया फिलॉसफी, कि आप अपने काम से जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसका एक खास पार्ट दोबारा से उस सोसाइटी पर, उस कम्युनिटी पर आप स्पेंड करें। आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही होती हैं, कुछ सोशल इवेंट्स करवा रही होती हैं, कुछ डिफरेंट इस तरह का काम करती हैं जिससे वहाँ कम्युनिटी को फायदा हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज ने पाकिस्तान में मौजूद पानी के मसाइल को सामने रखते हुए थर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। कराची में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी फ्री प्रोडक्ट्स देती हैं, नीडी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके सोसाइटी का ख्याल रखती हैं। कुछ कंपनीज अपने स्कूल जो है वो अपने बनाए हुए हैं, जहां पर उनकी कंपनी है वहां पे ही उन्होंने एक छोटा सा या बड़ा स्कूल बनाया है, और वहां के आसपास के रहने वालों के लिए वो स्कूल की जो तालीम है बच्चों के लिए वो फ्री है। ऑर्गेनाइजेशन ये काम क्यों करती हैं और किस मीनिंग्स में करती हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। व्हाट आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ CSR? CSR की जब हम बात करते हैं तो हम क्या क्या काम करते हैं। जिस तरीके से CSR को समझने के लिए ये बात जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि जिस तरीके से बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट जो है वो लेस प्रिविलेज वन जो लोग होते हैं उनको खर्च कर रहे होते हैं, और हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि हम ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं। ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो हम काम कर रहे होते हैं वो हम इस वजह से कर रहे होते हैं कि क्योंकि कम्युनिटीज हमें हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्पफुल होती हैं। इस वजह से उनका भी हमारे रेवेन्यू पे एक हिस्सा समझ लें या एक हक समझ लें वो होता है, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ कम्युनिटीज नहीं आती, बल्कि आसपास रहने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, आसपास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, और इन्वायरमेंट भी आता है। जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट मतलब आबो हवा जो हम जहाँ पर हम रह रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि और जैसे कि हमारा शहर कराची काफ़ी तेज़ी के साथ इसकी जो पॉपुलेशन है पिछले कुछ सालों में वो इंक्रीज हुई, तो कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज जो एक वक्त में, अगर हमारा आप अपने वालिद और दादा नाना दादा इन लोगों से पूछें, कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज जो है पहले शहर से बाहर थी,
शहर ने इतने ड्रामेटिकली चेंजेस, मतलब ज्योग्राफिकली जो एक्सपेंड हुआ हमारा शहर, कि वो सीमेंट फैक्ट्रीज शहर में आ गई। जैसे कि लोग कहते हैं डालमिया पे एक सीमेंट फैक्ट्री थी, ठीक है। इसी तरह कोरंगी के कुछ इलाकों में जो है वो फैक्ट्रीज थी। जब ये फैक्ट्रीज थी उस वक्त यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज कम थे, पॉपुलेशन कम थी। देन दीज कंपनीज आर मूव टुवर्ड्स नूरियाबाद, मूव टुवर्ड्स सुपर हाईवे। ये तमाम चीजें हैं। आज भी वहां पर जो है वो इस तरह की कंपनीज मौजूद हैं। शहर में कंपनी हो या फिर आपकी किसी रूरल एरिया में कोई कंपनी हो, कंपनी पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं या गाइडलाइंस हैं वो इक्वली एप्लीकेबल है। ना सिर्फ मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ आसपास के रहने वाले लोग नहीं आते, बल्कि एनवायरनमेंट भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है। आपके काम से ना कम्युनिटी को नुकसान होना चाहिए, ना ही इन्वायरमेंट को नुकसान होना चाहिए, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और कुछ मुल्कों ने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट में भी ये बात रखी हुई है। लीगल रिक्वायरमेंट आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे मुल्क कोई भी हो। हर मुल्क की एक ट्रेड पॉलिसी होती है, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जो कि हर किस्म के, हर नेचर ऑफ बिजनेस पे एप्लीकेबल होती है। चाहे आप स्टील मैन्युफैक्चरर हो या चाहे आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट लाजमी होंगी, जिसमें से CSR उसका भी एक पार्ट होता है कि आपको कुछ ना कुछ CSR एक्टिविटीज करनी है। तो लेकिन CSR एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं वो हम बात करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि अगर आपका कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का हो कि आप गैस जो है वो गैस एक्सक्रीट होती हो, या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती हो। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट ग्रीन नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आप एक्सक्रीट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बिकॉज हमारे यहाँ ग्रीनरी तो वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एनवायरनमेंट में जो है वो पास आउट करेंगे, तो एक ही ऑप्शन ये है कि जो दरख्त हैं वो उसको एब्जॉर्ब करें। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रीज या ग्रीन एरियाज कम है, तो फिर नुकसान आपका ही है, ठीक है। एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो ये कंपनीज अगर कोशिश करती हैं कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ें। अच्छा, उसके लिए वो जो है वो उस डिफरेंट काम करती हैं, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी उसकी रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वर्ड जो है ना कार्बन फुटप्रिंट, ये थोड़ा टेक्निकल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसकी मैं क्लैरिटी आपको दे देता हूँ। Carbon footprint is the total greenhouse gas emission caused by an individual, event, organization, service. कि या आप इंडिविजुअली कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट कर रहे हैं, या किसी खास इवेंट पे, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, या कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे कुदरती माहौल में शामिल हो रही है, और वो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको नेगेटिव एलिमेंट लेवल पे आप उसको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कोशिश करनी है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कम से कम जो है वो पास आउट हो, ठीक है जी। क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कार्बन फुटप्रिंट के हवाले से? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं मिसालें दे देता हूँ। जिस तरीके से ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, वो जो है वो बहुत, आपने देखा होगा कि अगर आप इंटीरियर पंजाब जा रहे हो या इंटीरियर सिंध जा रहे हो, तो आप अगर देख रहे होंगे तो बहुत ग्रीनरी नजर आती है, और फिर आपको देखते हैं कि एक चिमनी सी निकली होती है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल एक वाइट किस्म का धुआं या समटाइम ब्लैक कलर का धुआं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उसमें एनवायरनमेंट में। तो अगर आपका ऑयल एंड गैस का काम है, अगर आपका जो है वो इवन अगर आपका जो है वो बॉयलर मेक वो है, अगर आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो इसी तरीके से समटाइम्स कंपनीज बहुत टॉक्सिक केमिकल यूज कर रही होती हैं, और ये भी उन पर जो है वो एप्लीकेबल होता है कि वो टॉक्सिक केमिकल को नॉर्मल ड्रेन लाइन में नहीं
फ्लैश आउट करें, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ट्रेन लाइन में फ्लैश आउट करेंगे तो केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे लोगों को, ठीक है। तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो कोई भी केमिकल यूज करें या फूड या कोई इस तरह की गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में ना छोड़े, उसके लिए उसकी कोई रिसाइकलिंग का प्रोसेस डेवलप करें, ठीक है। तो नंबर 1, अगर कंपनीज ये भी काम कर रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेस एक्सक्रीट कर रही हैं और टॉक्सिक केमिकल लेस एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो ये भी कंपनी की तरफ से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की मतलब का ही एक एलिमेंट है कि ये वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। जिस तरीके से बीइंग एन इंडिविजुअल हम पर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होती है कि हम अगर अपने घर का कचरा फेंक रहे हैं, रोड पे ना फेंकें, ठीक है, उसको डेजिग्नेटेड प्लेस पे फेंकें, ठीक है। अगर कोई केमिकल या इस तरह की कोई चीज है, वेस्ट है, तो उसको प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है। ये एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी है, ठीक है। जो हमारी ड्रेन लाइंस हैं उसको प्रॉपर साफ रखें, ठीक है। अगर कोई हमारा इवेंट है, आपने देखा होगा लोग हमारी इवेंट होते हैं और लोग मेन रोड्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, गलियों को ब्लॉक कर देते हैं कि हमारी यहाँ शादी है या वट जो भी इवेंट्स हैं, ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है कि आपका कोई भी ऐसा काम जो कि सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्टिविटी, ठीक है। नंबर 1 कार्बन फुटप्रिंट। नंबर 2 इंप्रूविंग द लेबर पॉलिसीज। आपको पता है पाकिस्तान इस उन कंट्रीज में शामिल है जहां पर लेबर की तादाद बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ एक लार्ज क्वांटिटी में जो लेबर है वो जो पाकिस्तान से बाहर भी काम करती है और पाकिस्तान में भी काम करती है। और ये कहा जाए कि हमारे यहाँ लेबर तबका ज्यादा है तो शायद गलत ना होगा, ठीक है। तो जहां लेबर है वहां पर आपको पता है लेबर लॉज एप्लीकेबल है। पाकिस्तान का भी जो है वो लेबर लॉ है, मौजूद है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO मौजूद है, जो कि फर्स्ट जिसकी जो कि लेबर जो कि जितने भी मजदूर हैं उनके लिए कवानीन बनाता है और इन्वेस्टिगेट करता है कि कंपनीज उनको प्रॉपरली कवानीन को मद्देनजर रख रही हैं या उस पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही। कमिंग बैक टू द इम्प्रूविंग द लेबर पॉलिसी, लेबर की क्या रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई बताएगा? एक लेबर की रिक्वायरमेंट क्या है अपनी कंपनी के साथ? कि सर उसको अच्छी सैलरी दे, उसको अगर मेडिकल की जरूरत है तो मेडिकल दे, और इस तरह की फैसिलिटीज दी जाएं जो कि उसके फ्यूचर के लिए भी बेहतर हों, और अभी वो जो लाइफ जी रहा है उसके अंदर वो पूरी रिलैक्सेशन तरीके से अपनी लाइफ को कर सके। तो ये उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। परफेक्ट, एक्सीलेंट निरा, बिल्कुल आप सही कह रही। नंबर 1, लेबर की जो मिनिमम वेज है वो पे की जा रही है, ठीक है। मिनिमम वेज अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखें 2021-2020 में, दैट इज 15,000 रुपीज, ठीक है। अक्सर जब भी बजट आता है तो हम बताते हैं कि मजदूर की तनख्वाह में इतने पैसे बढ़ गए और मिनिमम वेजेस की पॉलिसी इतनी है, तो एटलीस्ट उसकी मिनिमम वेज हो, ठीक है। फिर चाइल्ड लेबर ना हो। चाइल्ड लेबर का मतलब वो बच्चे जो कि 16 से 18 साल से कम है या बहुत छोटी एज के हैं, उनसे कोई हैवी काम ना लिया जाए, उनसे किसी कंपनी में काम ना लिया जाए, मतलब ये उनकी पढ़ने की उम्र है, ये अगेंस्ट द लेबर पॉलिसी है। प्लस फिर लेबर की बहुत अच्छी बात की आपने, हेल्थ और सेफ्टी दोनों को मेक श्योर करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। जब इंशाल्लाह आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में बाकायदा एक जो है वो एक डिपार्टमेंट कह लें या किसी खास बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसका काम ये होता है कि वो कनेक्ट रहता है लेबर से, उनके इश्यूज को हैंडल करता है, उनके इश्यूज को फैसिलिटेट करता है, फुलफिल करता है उनकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वहां पर जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग आए तो वो सेफ आए और सेफली आए और सेफली जाए, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है। देन लेबर की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो उनको सिर्फ उनसे काम ना लिया जाए, उनको डिफरेंट मीनिंग में हेल्प की जाए, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाई जाए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाए, ठीक है, ताकि जो लेबर है वो एक खास लेबर की हद तक ना रह सके, उनके लिए प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। अगर कभी कंपनी ये सब काम कर रही है, लेबर को उनकी मिनिमम वेज पे कर रही है, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम की पेमेंट कर रही है, कोई ऐसा हेल्थ एंड सेफ्टी उनकी रिस्क पे नहीं है,
तो कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर रही है। फिर डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, आपने देखा होगा फ्री आई कैंप होता है, फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही एग्जाम्पल है कि कंपनीज फ्री मेडिकल कैंप लगाती है रूरल एरियाज में, ऐसी जगहों पे जहाँ के लोग अच्छी मेडिकल फैसिलिटी को नहीं जो है वो अचीव कर सकते, तो वहाँ पर वो इस तरह के ट्रेड फेयर लगाते हैं जहाँ पर वो सस्ती चीजें दे रहे होते हैं और जहाँ पर वो लोगों को अपनी प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कॉम्प्रोमाइज करके लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी इस तरह का काम कर रही है तो ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जुम्रे में आता है। ठीक है, देन चैरिटेबल गिविंग, हर कंपनी जो है वो चैरिटी कर रही होती है। ठीक है, और वो समटाइम्स दे कोलैबोरेट विद द एनजीओ और उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा कि वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं, कि वो एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, चैरिटी देते हैं। अगर आप जिना हॉस्पिटल जाएं या अगर आप सिविल हॉस्पिटल जाएं तो वहां पर प्रॉपर कंपनीज ने पूरे पूरे वार्ड्स बनाए हुए हैं जो कंपनी के नाम से जो है वो मुख्तस हैं, कि फला कंपनी ने ये वार्ड बनाया है, यहाँ इस वार्ड में वेंटिलेटर्स लगाए हैं। इसी तरह ये चैरिटेबल गिविंग में आता है। आपको याद होगा कि 2020 में जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो राशन कैंपेन्स चली, बहुत से लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात का सामना हुआ। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस काम में अपना हिस्सा डालने के लिए मार्केट में आई और उन्होंने राशन एक्टिविटीज करवाई और अपनी जितनी भी प्रोडक्ट उनकी स्टॉक थी उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में जो कि रेलेवेंट थे या नीडी थे, बिकॉज उनको पता है कि ये वक्त गुजर जाएगा और उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं यही यही वो पार्टिसिपेंट, यही वो कस्टमर्स हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू दे रहे होते हैं। इस वक्त वो कस्टमर मुश्किल में है, उनके पास बाइंग पावर खत्म हो गई है, तो वो इस वक्त नहीं ले सकते। ये सेशन क्लोज हो रहा है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। ये 4 पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉलंटियरिंग इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिफरेंट इवेंट होते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा सीवीयू को काफी मर्तबा